Hello and welcome to Sri Krishna University. My name is Dr. Supriya Gautam and today I am going to discuss about the topic planning, which comes under the business management subject and course of BBA. This is the second unit and here I am going to discuss about the planning, its nature, objective and process of the planning. So in very detail I am going to share my slide with you all. So I would like to discuss about the concept of planning. Planning is deciding in advance what to do and how to do. What to do and how to do. Business activities are lot of, they are selling, they are purchasing, they are selling to the customers, they are purchasing from the buyers, and then they are making the product and services, and then they are selling. So these are the things that involve in the business. So first of all, business has to plan what to do and how it is to be done. It is one of the basic managerial function. Yes, in the business there are different managerial functions and planning is the primary one. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. The task can be anything: to earn the profit, to maximize the share, to re-advance the product, to diversify the product line. These are the some things that business can go with it, and it involves the planning. Thus planning is closely connected with creativity and innovation. Yes, there is a creativity and innovation, because whatever you plan, either to design the product, either to revamp the product, it needs some creativity, it needs some intellectual process, and then planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. What is your current position in the business and what you aspire to be, that comes under the planning, that helps in the planning. Planning is what managers at all levels do. Like I said, in the business, managers are the one who takes the necessary actions and do the business kind of a thing. So it is always related with the managers, that whatever the plans is given by the top authority, that manager is going to formulate on the lower levels of the employees. It requires taking decisions, since it involves making a choice from alternative course of action. There are different courses of action, that is, there are different kind of variables available in the market or in the planning, and then the manager seeks for that which is profitable, which have the optimum utilization of resources, and that is to be chosen by the manager as a part of planning. So students, any of the word, if we talk about the terminology, we have to study about the definition. So this is the very famous definition of planning by the Kuntz und Daniel, that is, planning bridges the gap from where we want to go. It makes possible for things to occur while would not otherwise. That is, if you plan, this definition sums up with the, if you plan earlier that what is your move for the business, then you will actually go for it, then you have the path for that business, and then it makes some possible for things. Whatever you are thinking that it is not going to be achievable or it is not going to be attainable, with the help of proper planning, proper projection, you can achieve that business result or goals. Here these are some questions that I wanted to discuss with you all. Planning involves the task of deciding in advance. Like I said, it is not the forecasting, but yes, there is a proactive approach in the planning which talks about whatever the decisions has to be taken for the sake of business, it need to be chalked out, it need to be planned first. So these are some questions, students, which every business manager talks about or think about. First of all, what to do, that is, karna kya hai. How to do, kaise karna hai. When to do it, kab karna hai, and who will do it, kaun karega. These are the 4 questions. Whenever a business manager, you people are students, you people are also the future manager of any company. So these are the first of all 4 questions that you have to chalk out in your mind before planning for any kind of a project or for any kind of a business. Then a manager who has to answer
4 basic questions while formulating a plan. These are some questions that a manager has to formulate and he has to give the answers. First of all, where are we now? Realistic assessment of current situation. So the situation should be realistic. That shouldn't be like which cannot be the hypothesis like हमें चांद को पकड़ के लाना है, ये हमारे लिए सही नहीं होगा. तो जो situation है that could be a realistic one. Then what do we want to be? हम क्या बनना चाह रहे हैं, हमारे कंपनी का गोल क्या है, विजन क्या है, हम आगे चल के अपनी कंपनी को कहाँ देख रहे हैं. नेक्स्ट, गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस गैप को ही फुलफिल करने का नाम है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग एक तरह का ब्रिज है. इट इज़ लाइक अ ब्रिज विच कनेक्ट्स कि आप अभी कहाँ पे हो और आप कभी कहाँ जाना चाहते हो. वो जाने के लिए जो राह को पार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी वो है प्लानिंग. हाउ डू वी गेट देयर, और हम किस तरह से जाएंगे. वो ब्रिज भी मिल गई है, लेकिन हमें उसको पार किस तरह से करना है. क्या हमें पैदल चल के जाना है, क्या हमें गाड़ी के साथ चल के जाना है. दीज आर सिंपली क्वेश्चंस दैट अ मैनेजर फॉर्मुलेट टू आंसर अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ बिजनेस. हमने बहुत सारी कंपनीज़ को देखा है जो हर बार कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ और इनोवेशन के साथ मार्केट में आती हैं. आप जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स देख लीजिए, इनफैक्ट आप अपना स्मार्टफोन देखिए, वो हर 25वें या 30वें दिन पे एक एप्लीकेशन पे जो है अपडेट आता है. दैट इज़ ऑल्सो प्लानिंग. वाई? बिकॉज कस्टमर इज़ वांटिंग समथिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर. और उसको फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरर पहले ही प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि हम किस तरह से अपने कस्टमर को कोई भी चीज़ें नहीं दें. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द मॉडिफिकेशन एंड न्यूनेस ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस. एंटरिंग इनटू अ न्यू फील्ड. आप किसी बिजनेस में थे, आप रिटेल बिजनेस में थे, बट आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी. तो वहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इतना इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस. मैंने पहले ही बोला है कि आपको जो है रियलिस्टिक होना पड़ेगा. आप कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को नहीं अपने सामने ड्रॉ कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आप अपना तीर मारिए. नहीं, आपको एक अपना डायरेक्शन यानी कि गोल आपको साधना पड़ेगा. और उस गोल पे जाने के लिए जब आपको एंड रिजल्ट पता होगा तो आप उस पर आराम से जा सकते हैं. तो वहाँ पे आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है. इन दैट डायरेक्शन इज़ कैन बी एनीथिंग. मैंने पहले भी बोला है कि आप चाहे तो प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपना ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. किसी ब्रांड एम्बेसडर को चेंज करना है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जाम्पल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वो एक ऐसी चीज़ है जो हम चाह करके भी एलिमिनेट नहीं कर सकते. लेकिन येस, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को कम कर सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप कभी भी घर से बाहर निकलते हैं और मौसम थोड़ा बादल का होता है तो आपको ये लगता है कि हम छाता लें या नहीं लें, शायद बारिश होगी नहीं होगी. अगर आपने छाता रख लिया और बाई चांस वो बारिश हुई तो आप उस बारिश से बच जाते हैं. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिस्क को वहाँ पे कम कर ले रहे हैं. सेम गोज़ विद द प्लानिंग. एक मैनेजर होने के नाते जो आप लोग होंगे फ्यूचर मैनेजर, तो आप लोगों को वो रिस्क बिजनेस का कम करना पड़ेगा. रिस्क कुछ भी हो सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है. मार्केट में इतने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कस्टमर्स के नीड प्रेफरेंसेस रोज रोज चेंज हो रहे हैं. देयर इज़ अ टाइम जब नोकिया वॉज द लीडिंग प्लेयर इन द मार्केट एंड नाउ देर आर डिफरेंट चाइनीज मोबाइल कंपनीज विच आर प्लेइंग इन द मार्केट लाइक वीवो, ओप्पो, सैमसंग. दीज आर द कंपनीज दैट आर फ्लरिशिंग इन द मार्केट. सो रिस्क, और अगर आपने पहले ही उस रिस्क और अनसर्टेनिटी को देख लिया कि कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस क्या है और उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करके वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा दिया, तो आप वहीं पे बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग जो बहुत नॉर्मल से शब्द हमें लगता है, हम ये सोचते हैं कि हम इसे यूज़ करते हैं नॉर्मल से शब्द में. नो, इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ नॉट कॉमन. जब आप एक किसी बिज़नेस को बना रहे हैं तो उसमें डिसीज़न लेना है, क्योंकि वो बिज़नेस, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपके डिसीज़न से आपकी कंपनी को ही नहीं प्रभावित करेगी,
आपके एम्प्लॉय को प्रभावित करेगी, आपके कस्टमर को प्रभावित करेगी और मोर ओवर आपके सोसाइटी को भी प्रभावित करेगी। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी छवि नहीं है, उनको कभी भी कंपनी जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर नहीं करता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट दैट पॉपुलर फेस ऑफ दैट ब्रांड। और अगर वो पॉपुलर फेस को हायर नहीं करेंगे तो फिर लोग उनके प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे परचेज करेंगे। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं, जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो उनकी हमेशा से एक छवि बहुत साफ़ होती है और वो एक्सेप्टेबल होते हैं मार्केट में, तभी कंपनी उनको हायर करती है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ये एक छोटा सा मैंने डिसीजन मेकिंग का बताया। इसके साथ ही साथ मैं बताती हूँ कि आजकल आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो प्रोडक्ट में भी जो न्यूनेस के नाम पे आप कुछ भी अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकते हैं, राइट। आपने फ़ोन जो है टच स्क्रीन बना दिया, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे फ़ोन जो है एक फ्लाइंग फ़ोन बनाना है, तो शायद से वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए जो कि वैलिड हो और किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आधारित ना हो। आफ्टर दैट प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। येस, इट इज़ ऑल्सो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्टिमम यूज़फुल ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इसमें जो भी कंपनी अगर प्लान करती है तो कोई भी वेस्टेज होता है तो उसको भी ध्यान देती है कि अगर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश आ रही है और मेरी कंपनी जो है वो अम्ब्रेला का बिज़नेस करती है और मुझे उसकी मार्केट में, क्योंकि सीज़न है बारिश का और मुझे अम्ब्रेला का बढ़ाना है प्रोडक्शन, तो मैं ये देखूंगी कि क्या यहाँ पे उतनी बारिश हो रही है। अगर यहाँ पे सूखा पड़ गया तो मैंने जो प्रोडक्शन बढ़ा दिए, क्या वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट का क्या करूँगी। तो वहाँ पे मुझे अपने वेस्टफुल चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रोडक्ट जो है जिसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, क्या मैंने ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर दी कि वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, या मैंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट में तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया है जो कि वो आगे चल के वो कैपिटल जो है वो क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। बहुत सा बढ़िया एग्जाम्पल है, हमने सभी ने सुना होगा कि 80s में 90s में स्कूटर्स आते थे, गेयर वाले स्कूटर्स आते थे, बजाज के आते थे, LML के आते थे, बट आज की डेट में वो मार्केट में नहीं है। आज की डेट में कोई ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी आए, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी आए जो इन्वेस्टमेंट करे फिर से 4 स्ट्रोक के बजाज के स्कूटर्स में, तो वो मार्केट में नहीं चलेगा। तो वो एक तरह से वो प्लानिंग जो होगी वो हमेशा के लिए फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी वाइज इतना एडवांस नहीं है, कस्टमर के लिए इतना ज़्यादा हैप्पियर नहीं है, वो प्रोडक्ट पे हम उस तरह की प्लानिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी वेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी रोकने में मदद करती है, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। हमने बहुत से प्रोडक्ट देखे हैं, बहुत से सर्विसेज देखे हैं, रोज़ हम देख रहे हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम ब्रश करते हैं, टूथब्रश। आजकल आप देखते होंगे मार्केट में फिलिप्स ने इनोवेटिव के नाम पे जो है अपना टूथब्रश, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश लॉन्च किया है, जिसको आजकल यूथ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, कि उसमें फ्लॉसिंग भी होती है, उसमें टीथ की क्लीनिंग भी होती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट कंपनी एक्चुअली इंड्यूस। तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिसको कस्टमर हमेशा से अपने अंदर इंड्यूस करता है और उसको चाहता है कि वो ले, लेकिन कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जो कंपनी तो ला देती है बट हमें वो पसंद नहीं होते हैं। आपके फ़ोन में भी आप देखते होंगे हज़ारों फीचर्स होते हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज़ प्लानिंग की वजह से ही आते हैं मार्केट में या प्रोडक्ट में या सर्विस में, जिसको हम लोग यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है एक लास्ट जो पार्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग में यही चीज़ें बताई गई कि जो भी हमने बेंचमार्किंग या स्टैंडर्ड को सेट किया है, क्या हम वो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हम उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, जो बेंचमार्किंग हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम में रखी थी। तो यहाँ पे जो हम प्लानिंग करते हैं तो हम वही, ये स्टार्टिंग का काम है और कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट पार्ट, बट उसके बीच में हम प्लानिंग के टाइम ही समझ लेते हैं कि जो हम बेंचमार्क करने वाले हैं वो क्या अचीवेबल होने वाला है एम्प्लॉयज़ के द्वारा कि नहीं, क्या वो सेल्स की टीम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी,
और उस कंट्रोलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो ये वाला वर्ड मैंने यूज़ किया था, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस है, एक टाइम था जब मैगी मार्केट से आउट हो गया था बिकॉज ऑफ द MSG, तो उसकी वजह से अगर मैगी फिर भी प्रोडक्शन करता रहता तो वहाँ पे क्या होता, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होता। तो वहाँ पे उन्होंने जब कंट्रोलिंग करी तो कंपनी को उतने दिनों के लिए घाटा तो हुआ, लेकिन जो अगर वो नया प्रोडक्शन करते उसका जो लॉस होता वो वहाँ पे रुक जाता। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लानिंग के। आपको और भी कुछ समझ में आते हैं, बिल्कुल आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। मैंने फर्स्ट टाइम से ही बता रही हूँ कि प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का होता है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव इज़ द टू अर्न द प्रॉफिट, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं। उस गोल को, प्रॉफिट को अर्न करना है तो वो कैसे करना है। अगर मेरी कोई कंपनी है जो कि ऐसा प्रोडक्शन कर रही है जिसकी वजह से सेलिंग हो रही है कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। हम टेरिटरी को मार्क करेंगे, ठीक है। उस टेरिटरी में क्या करेंगे, वहाँ पे टीम लीडर्स भेजेंगे और वहाँ की सेल्स टीम एक्टिव हो जाएगी और उन टेरिटरी में हम वो प्रोडक्ट या वो सर्विस को बहुत ज़्यादा बेचना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है। आपके जो छोटे छोटे मेजरेबल गोल्स हैं वो कौन अचीव कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ प्लान। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट यूनिट में कि प्राइम ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के होते हैं और फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। देयर आर 5 मेजर फंक्शंस, उसमें प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, प्लानिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी बिजनेस प्लान स्टार्ट करते हैं तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग कोई भी हो सकती है। हाउ टू गेट द कैपिटल, आपको फंड कहाँ से लाना है, आपको इन्वेस्ट किस में करना है, आइडिया क्या होगा, बिजनेस कहाँ आप करेंगे, कौन सा कस्टमर होगा जिसके ऊपर आप टारगेट करने वाले हैं, मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में ही आती हैं। इट इज़ पर्सुएसिव। पर्सुएसिव मतलब जो हर जगह पे हो, हर जगह पे प्रेजेंट हो, ठीक है। प्लानिंग को अगर हम बात करते हैं तो मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको जिस तरह से कि बिजनेस में देर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ द बिजनेस। और उसमें क्या होते हैं कि पोस्ट के आधार पर लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। तो प्लानिंग जो है टॉप सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का जो CEO है सिर्फ वही करेगा, नो। Planning can be done by the top level also, the lower level also, the middle level also. So planning is in every field of the levels of the management. It is an intellectual process. Yes, मैंने पहले बताया कि एक बात है प्लानिंग में कि हमेशा से ये इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी लाती है। तो वहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो हमेशा से कुछ यूनिक होगा, वो प्रोएक्टिव होगा, शायद वो हुआ नहीं है और यू आर द पायनियर, ठीक है, यू आर द पायनियर। फ़ोन आया जब, तो हम सभी लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। पायनियर फ़ोन आया कि एक स्मार्टफोन हमें यूज़ करना है। एप्पल का हम अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एप्पल इज़ नोन फॉर द इनोवेशन। तो इट इज़ द वाई, बिकॉज दे हैव द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, they are thinking about the advance, the know-how, the technology. That is why they are coming up every time with the new product, new services, with the new features, right? It is a continuous process. Once is also कि मैं बार बार कहती हूँ कि प्राइमरी फंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पहली बार में यू हैव स्टार्टेड कि दिस इज़ द बिजनेस प्रोसेस एंड दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव प्लान्ड एंड नाउ इट इज़ फिनिश। नहीं, आपको प्लानिंग हर एक स्टेज पे करनी पड़ेगी और वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आपने आज अपना बिजनेस प्लान बना लिया, अब उस बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस पे करना है, किसके द्वारा करना है और वो सही से हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मतलब कि वो प्लानिंग जो है वो हमेशा से कंटिन्यूअस रहेगी। इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। एक बहुत अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं प्लानिंग के लिए वो यही है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग, व्हाट हैपन्स इन द पास्ट हैपन इन द पास्ट, दैट इज़ रेस्ट, उसको छोड़ दिया जाता है। हमेशा से हमारा जो अप्रोच होता है बच्चों, वो हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम किस तरह से प्लान करें और जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में या सोसाइटी में या सराउंडिंग में, उसको हमें किस तरह से अचीव करना है और अपने फेवरेबल कंडीशन में लाना है।
और बहुत अच्छी बात ये भी है कि प्लानिंग जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कोई चीज़ जो अगर वो स्टिफ होती है तो अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाती है, लेकिन अगर किसी चीज़ का अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है तो वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ भी यही है कि आपको जिस स्टेज पे लगता है, फॉर एग्जांपल यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस प्लान विद 200 करोड़ और आपको आगे चल के लगता है कि नहीं यहाँ पे 200 करोड़ नहीं, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बनने वाला है। लाइक अभी जो सबसे ज़्यादा मार्केट में हॉट ट्रेंड है वो 5G बिजनेस का है, 5G फ़ोन, 5G नेटवर्किंग का है। तो अगर इसमें हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि हम उसमें अगर देख रहे हैं कि कस्टमर बहुत ज़्यादा उसके लिए आतुर है सामान को लेने के लिए, तो हम वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच विच इज़ वेरी गुड थिंग आई गेस इन द प्लानिंग। अब क्योंकि हर एक चीज़ जब होती है तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस होता है। हमारी भी उत्पत्ति हुई है तो हमारा प्रोसेस हुआ है, हम लाइफ को जी रहे हैं तो उसका भी प्रोसेस होता है। एक सिंपल सी चीज़ है, हम घर में खाना भी बनाते हैं तो उसका प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से प्लानिंग का भी प्रोसेस होता है कि किस तरह से प्लानिंग इज़ नॉट मियरली अ वर्ड, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनी और मैनेजर थिंक्स अबाउट इट, गो थ्रू इट एंड देन अचीव द फाइनल गोल ऑफ द बिजनेस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं विद द मॉडल, विद दिस डायग्राम, जो कि प्लानिंग के प्रोसेस को बताएगा। जैसे है, एज प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी देयर आर सर्टेन रीजनेबल मेजर्स फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। मैंने बोला है कि हमेशा से सर्टेन मेजर्स होंगे, कभी भी प्लानिंग किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे नहीं की जा सकती है। तो वो जो गाने होते हैं जिसमें बोला जाता है कि मैं चांद को तोड़ के लाऊंगा, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इन रियलिटी आपको चांद पे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस तरह के एस्ट्रोनॉट्स भेजने पड़ेंगे। तो दिस इज द थिंग दैट हैपन्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन एज अ टाइम, वन करके, एक एक करके मैं इसके प्रोसेस के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम पहला क्या करते हैं, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, हम सेट करते हैं कि हमें करना क्या है। दिस इज द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। क्या ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। द प्लानिंग प्रोसेस बिगिन्स विद द setting of objectives. Objectives are the end results which the management want to achieve by its operations. Objectives are specific and measurable in terms of unit. आप जो है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, to earn the profit, but that profit can be countable and measurable. तो वो profit का अमाउंट भी आपको तय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि हमें फर्स्ट क्वार्टरली में हमें 200 करोड़ का बिजनेस करना है, तो वहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये आपका बिजनेस जो है वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट में होगा। या फिर आप हैं, आपकी कंपनी है क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स की और वो पंखे बेचती है, गर्मी का सीज़न है, तो आपने ये बोला कि हम जो गर्मी का सीज़न होगा, समर सीज़न होगा, उसमें हम चाहते हैं कि 2 लाख फैन की सेलिंग हो। तो ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ यूनिट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड देन डिपार्टमेंट्स set their own objective within the framework of organizational objective. Like I said कि planning is persuasive. It is available in every field or every level of the management. तो आप ये जो लास्ट लाइन है वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव को हम सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को होल में तो हमें सेट करना ही है, प्लस हमें डिपार्टमेंट भी करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ लीडिंग बता दूँ तो IT हो गया, फिनेंस हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। दीज आर द सिंपल, प्रोडक्शंस हो गए, ऑपरेशंस हो गए, दीज आर द सम डिपार्टमेंट्स। तो उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा, और वो जब सेट कर लेंगे कोलैबोरेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, होल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और उसी फ्रेमवर्क में, यानी कि उसी दायरे में रह करके ही हमें करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के साथ भी कोट किया है, अ मोबाइल फ़ोन कंपनी सेट्स द ऑब्जेक्टिव टू सेल 2 लाख यूनिट्स नेक्स्ट ईयर विच इज़ डबल द करंट सेल्स। जो आपकी करंट सेल थी उसका डबल हम कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया है कि एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, कोई भी आप ले लीजिए,
आप, और उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको 2 लाख यूनिट जो है नेक्स्ट ईयर में बेचनी है। तो ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि रियलिस्टिक भी है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी है, अचीव भी हो जाएगा और वो क्या है हर डिपार्टमेंट की तरफ भी पता है। अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक 2 लाख यूनिट नहीं बनाएगा तब तक मार्केटिंग और सेल्स की टीम उसको मार्केट में नहीं बेच पाएगी। तो हर डिपार्टमेंट के पास में पहुँच गया कि ये है कंपनी का ऑब्जेक्टिव या फर्स्ट प्लानिंग। सेकेंड, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस मीन्स इन हिंदी और आई कैन से दैट कि कोई जगह। तो आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई प्रेमाइस या कोई प्लेस जरूर बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इज एसेंशियली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, आपने प्लानिंग बना ली 2 लाख यूनिट की, लेकिन शायद गवर्नमेंट आ गई और उसके रूल्स में चेंज हो गए, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और उसके बाद क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका वो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। नहीं तो मार्केट में हो सकता है कि प्राइस की वजह से, उस कंपटीशन की वजह से आप बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट ना कर पाएँ। तो उसके लिए आपको एक प्रेमाइस जरूर बनाना पड़ेगा। सच इवेंट्स आर एक्सटर्नल इन नेचर एंड अफेक्ट द प्लानिंग एडवर्सली इफ इग्नोर्ड। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, जिस मतलब कि हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाता है या किसी और का प्रभाव नहीं पड़ पाता है, और वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, वो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट, देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। वहाँ पे मैनेजर की या जो टॉप मैनेजर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि प्लानिंग इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। तो आपको इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट ला सकते हैं, उनके लिए एक प्रेमाइस या जगह जरूर बनानी पड़ेगी। सच इवेंट्स आर द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर ड्रॉन एंड आर नोन एज प्लानिंग प्रेमाइसेस। और वही जो अजम्पशंस होते हैं जिसपे हम अपने प्लानिंग को बनाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा और उसके लिए हमें ये करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में फॉर्मेशन आ गया, कस्टमर की नीड में फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ गई, कंपनी की उस समय हो सकता है कि कंपनी की इमेज में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसके बारे में बायकॉट होने लगा। लास्ट टाइम हमारे यहाँ जब अटैक हुए थे तो क्या हुआ था कि लोगों के अंदर जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्या बॉयकॉट करने की एक प्रवृत्ति आ गई थी। तो वहाँ पे अगर वो चाह रहे हैं, कोई ऐसा चाइनीज़ फ़ोन है जो चाह रहा है कि वो बेच रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें एडवर्सली इफेक्ट जरूर करेंगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द मोबाइल फ़ोन कंपनी हैज़ सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 लाख यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमने ये सोचा कि हम 2 लाख यूनिट इसलिए बनाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आज भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत लंबे समय से और बार बार ये कह रही है कि डिजिटलाइज हो जाइए और फुल्ली डिजिटलाइज अपने ऑफिस को, कैंपसेस को कर लीजिए, और जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन को भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट किया गया या फोरकास्ट किया गया कि आने वाले समय में इंडिया में जो मार्केट है फ़ोन का या मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसकी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैं प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला हूँ। तो दीज आर द थिंग, और उस पर मैंने इस प्रमाइस को रखते हुए, ये सोचते हुए मैंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब इन केस फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती तो वहीं पे मुझे क्या करना पड़ता, उसके प्रोडक्शन को कट करना पड़ता। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आप कभी भी जब भी प्लानिंग करें तो किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन पे, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप स्थित ना हो जाएं कि यही हमारा है और आप इस पे फर्म मत होइए। डिफरेंट ऑप्शंस बनाइए। द ऑप्शंस कैन बी डिफरेंट विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरलिंक्ड, और ये सोच के चलिए कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ठंडा पानी पीना है और सिर्फ आप रेफ्रिजरेटर पे ही फोकस्ड है और उस दिन क्या हुआ कि पूरा ब्लैकआउट हो गया, लाइट कट गई, अब आपको ठंडा पानी चाहिए, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के बाद क्या,
तो उसके बाद आपके पास मटका होना चाहिए जिससे आप उसका ठंडा पानी पी सकें। एक सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह से बिजनेस में है कि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, न्यू एंट्रेंट भी रोज़ मार्केट में आते रहते हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आपकी कंपनी की प्लानिंग जो है वो आपने कोई एक एक्शन को चूज़ कर लिया है, उससे अफेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को चुनेंगे। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, then the next step is to act upon them. There may be many ways to act and achieve objectives. All the alternative courses of action should be identified. जितने भी alternative courses of actions होंगे वो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको हम चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। The mobile company has many alternative like reducing prices, increasing advertising and promotion, after sales service etc. अब ये जो 2 लाख यूनिट है ये हमें बेचना है, तो अगर हम सिर्फ सेल्स टीम पे ही फोकस रहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा मार्केट में, क्योंकि हो सकता है कि सेल्स बाकी कंपनी की भी बहुत ज़्यादा है, और अगर सेल्स टीम एक्टिव भी है लेकिन जो बाकी आपके जो कॉम्पिटिटिव हैं या जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आपके प्रोडक्ट से कम है, तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर स्विच करना चाहेगा वहाँ पे जहाँ पे जिसकी प्राइस कम होती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन करने पड़ेंगे। अगर आपको वो 2 लाख फ़ोन सेल करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग मोड चुनने पड़ेंगे, डिजिटल मेथड चुनना पड़ेगा, सोशल मीडिया को चुनना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करें, ढेर सारे आप बिजनेस में एडवर्टीजमेंट दिखाएं, प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को। उसके लिए आप किसी अच्छे किसी यूथ आइकॉन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन सकते हैं और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंडोर्स करा सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत अच्छी एक चीज़ है, कस्टमर को जो बहुत पसंद है, आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर फीडबैक जो लेते हैं, अगर आप वो भी करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर का हमेशा से क्या होगा, परसेप्शन क्या होगा, हमेशा से पॉजिटिव होगा और वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो हमेशा से रेडी रहेगा। आपने जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स देखे हैं उनका आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी लॉयल्टी को हमेशा से मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो आप डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस यानी कि जो ऑप्शंस रख भी रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, उनको भी हमें इवैल्यूएट करना है कि वो कितना अचीवेबल, मेजरेबल और कितना फीजिबल है। In this step, the positive and negative aspect of each alternative need to be evaluated in the light of objectives to be achieved. Every alternative is evaluated in terms of lower cost, lower risk and high returns. हम यही देखते हैं कि कॉस्ट हमारी कम लगे, हमारे को रिस्क कम लगे, कंपनी को कॉस्ट कम हो, रिस्क कम हो, लेकिन जब रिटर्न आए, प्रॉफिट आए तो वो क्या हो, वो हायर मोड पे हो, विद इन द प्लानिंग प्रीमाइसेस एंड विद इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। और वो चीज़ें कैसे हो जो हम बता रहे हैं, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल प्लानिंग प्रीमाइसेस है और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है उसी में हमको ये अचीव करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, द मोबाइल फ़ोन कंपनी विल एवेलुएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड चेक इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। जो हमारे सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स को चुनेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने एडवर्टाइजिंग को बूस्ट कर दूँगी तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर मैंने एडवर्टाइजिंग को टेलीविज़न मोड पे रखा है तो वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग में बात करूँ तो उसके साथ क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और उसका रीच जो है बहुत ज़्यादा है कस्टमर के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, उनके तक पहुंचाने के लिए, वो मैसेज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम्स इनटू द पिक्चर्स। अलग अलग जो फंक्शंस हैं, चाहे वो डायरेक्टिंग हो गए, ऑर्गेनाइजिंग हो गए, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, दिस स्टेप इज कंसर्न विद डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। करना वही है जो जरूरी है। In this step, managers communicate the plan to the employees clearly to help convert the plans into actions. जो भी आपने प्लान किताबी कॉपी में नोट करके रखा है, जो आपका विजन है, अब उसको क्या करना है, एक्शन में लाना है।
This steps involves allocating the resources, organizing for labor and purchases of machinery. अब आपने क्योंकि 2 लाख यूनिट की बात कर दी है, तो क्या आपके पास में उतनी मशीनरी है जो उस फ़ोन का प्रोडक्शन कर सकती है? क्या आपके पास में वो मैन पावर है जो उसको प्रोडक्शन करने में, या सेल्स टीम है मैन पावर में, जो HR है, क्या वो लोग हैं अवेलेबल जो आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं? एंड मशीनरी, रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, द रॉ मटेरियल्स, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन कंपनी हायर सेल्समैन ऑन अ लार्ज स्केल। आपको, और आपका टारगेट है 2 लाख फ़ोन बेचने हैं, और आपको किधर बेचने हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपके पास उतने सेल्स मैनेजर नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज एन HR आपका जो डिपार्टमेंट है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्समैन को हायर करेंगे लार्ज स्केल में। that creates TV advertisement, starts online marketing activities and set up service workshop. इन चीज़ों पे हम वर्क करना शुरू करेंगे ताकि हमारा जो क्या है वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होने के रास्ते पर आ जाए। लास्ट है फॉलो अप एक्शन, जिसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, हमारी सेल्स टीम आ चुकी है, हम उसका एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों तक वो मार्केट में पहुंच चुका है कि कोई कंपनी है जिसका इस बार जो है 2 लाख प्रोडक्शन जो है होने वाला है और लोगों को बेचना है। तो अब हमें फॉलो अप लेना है। मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड फॉलो अप। आप अपने जो प्लान है उसको मॉनिटर करते रहें एक वॉच डॉग की तरह, एंड देन आपको उसका फीडबैक भी लेना है कि जो भी आपने बेंचमार्किंग या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट की है, क्या वो उसी तरह से आ रहा है, उसका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या वो आपके फेवर में है या कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल है। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ही आपने अपने प्लान को मॉनिटर किया है और आप क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट विद सेट स्टैंडर्ड्स आर डन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। हम क्या करेंगे, हम बार बार हम उसको चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारा स्टैंडर्ड है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो 2 लाख फ़ोन है, कहीं पे प्रोडक्शन में तो कोई हॉल्ट नहीं आ पा रही है, क्या हमारे सेल्स मैनेजर तो ऐसे नहीं है जो कस्टमर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्या हमारी एडवर्टाइजिंग इतनी स्लो तो नहीं हो गई है कि लोगों तक वो मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहा है कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट भी या इस ब्रांड का मोबाइल फ़ोन भी अवेलेबल है और अनअवेलेबिलिटी के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं, रिटेलर तक फ़ोन ही नहीं पहुंच पा रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार फॉलो अप लेना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है, अ प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म वॉज डेवलप्ड बाय द मोबाइल फ़ोन कंपनी थ्रू आउट इट्स ब्रांचेस सो दैट द एक्चुअल कस्टमर रिस्पॉन्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स एक्सेट्रा कुड बी डन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फीडबैक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कस्टमर के रिस्पॉन्सेस को लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आपको कोई भी आप ब्रांड पकड़ लीजिए सैमसंग का ही, और सैमसंग कंपनी ने ये सोचा था, उसकी प्लानिंग थी कि 2 लाख फ़ोन का जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या वो उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स कैसा है, वो प्रोडक्ट का आपको रिव्यू कैसा लग रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, ये सारी चीज़ें लेनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, एक आपको पॉजिटिव फॉलोअप मिलेगा और वो फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिव काम के लिए कर सकते हैं। And this one is the last, that selecting one best alternative. The best plan, which is the most profitable plan and with minimum negative effect, is adopted and implemented. In such cases, the manager experience and judgment in play an important role in selecting the best alternative. ठीक है, आपने क्या किया, आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुना और उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि वही आपके प्लान में प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन कंपनी सेलेक्ट्स मोर टीवी एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग विद ग्रेट सेल्स सर्विस। आपने क्या किया कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, फॉलोअप लेने के बाद उसको चुना और उसी को क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये एग्जाम्पल है जिसमें मोबाइल फ़ोन कंपनी ने टीवी एडवर्टीजमेंट को चुना और उससे ऑनलाइन मार्केटिंग करके
आफ्टर सेल सर्विस को बूस्ट किया और इसकी वजह से फ़ोन उनका 2 लाख यूनिट जो है वो सेल करने का जो प्लानिंग थी वो अचीव हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि वर्ड बार बार यूज़ हो रहा था, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देयरफॉर कैन बी सेड टू बी द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ऑब्जेक्टिव जो कि अपेक्षित की जाती है कि यहाँ मुझे पहुँचना है एक मैनेजर के द्वारा, वो हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही अचीव कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी, a strategy provides the broad contours of an organization's business. It will also refer to future decision defining the organization direction and scope in the long run. Strategy जो है एक वर्ड है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री में यूज़ हुई थी। जब वॉर गेम्स होते थे तो मिलिट्रीज बनाती थी स्ट्रैटेजी कि हाउ टू कॉन्कर। यहाँ पे स्ट्रैटेजी की भी जब बात करते हैं तो लॉन्ग रन में स्ट्रैटेजी काम आती है। स्ट्रैटेजी टू हाउ टू ग्रो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, हाउ टू सस्टेन इन द मार्केट। मार्केट में आना, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो 100 साल से ज़्यादा से लॉन्ग रन में यहाँ पे मार्केट में जो है सस्टेन कर रही हैं, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी की ही ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए आपको पॉलिसी जो कि रिटन स्टेटमेंट में होती है वो एक तरह का आपके लिए गाइड का काम करती है और वो प्लानिंग में हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी यू कैन गो थ्रू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्रोसीजर्स की बात करते हैं। प्रोसीजर्स जो कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है, आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। हम कोई भी प्लानिंग या कोई भी प्रोडक्शन की बात करें, हम एडवर्टीज़मेंट की बात करें, अगर हम उसका प्रोसीजर चाहते हैं तो हर चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी में जा रहे हैं तो वहाँ के प्रोसीजर्स होंगे जहाँ पे आपको फिलिंग ऑफ फॉर्म्स करना होगा, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलना होगा, फिर वहाँ से अप्रूव करवाना होगा। तो ये प्रोसीजर्स है जिसको फॉलो अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज़ टू बी डन। रूल्स जो है वो भी एक प्लानिंग का ही पर्पज़ है, टाइप है, जो कि बताता है कि क्या हमें करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का रूल है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, तो ये आपका एक रूल आ गया और आपको इसको फॉलो करना है। दिस कम्स अंडर द रूल। नाउ प्रोग्राम आर द डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन को चुनना चाहते हैं उसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक नियमावली बनाते हैं और उसमें आपने इससे पहले जो भी चीज़ बनाई थी, चाहे वो प्रोसीजर हो गया, चाहे वो रूल्स हो गए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो गए, चाहे वो पॉलिसी हो गए, उन सबको आप सम अप करके उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। एंड द लास्ट इज़ द बजट। बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट इज़ अ प्लान विच क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। एक ऐसा प्लान जो कि फ्यूचर फैक्ट और फिगर को करता है। आप बजट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी राशनिंग क्या है, कैपिटल आपको कितना इंट्रोड्यूस करना है और उस कैपिटल का क्या होने वाला है, वेस्टिंग नहीं होने वाली है। वो अगर आप प्रॉपर बजट बनाएंगे तो वो आपके कंपनी के लिए क्या होगी कि आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक और वर्ड है प्लानिंग में ही सेकेंड यूनिट के बिजनेस मैनेजमेंट में, फोरकास्टिंग, जो कि अक्सर लोग समझते हैं कि प्लानिंग और फोरकास्टिंग जो है एक ही तरह के वर्ड हैं, बट नहीं, फोरकास्टिंग एकदम से डिफरेंट है। फोरकास्टिंग वर्ड हमने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, जब वेदर फोरकास्ट होता है कि आज का मौसम ऐसा है और जो हमें क्या नाम है वो मौसम का प्रेडिक्शन करते हैं वो फोरकास्टिंग होती है। उसी तरह से बिजनेस में भी फोरकास्टिंग होती है रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए। Forecasting is used to mean the analysis and elucidation of a future state concerning the operations of undertaking. It is a process that takes into account past and present information and facts to anticipate future events. आज हमारे पास जो डेटा मौजूद है और जो पिछला डेटा मौजूद था उनको हम देखते हुए उनसे हम गो थ्रू होते हुए हम क्या करेंगे, फ्यूचर के डेटा को एंटिसिपेट करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी थी है नोकिया और नोकिया का पास्ट और प्रेजेंट का सेल्स रेशियो क्या है उसको देखते हुए मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे नेक्स्ट वाले साल में या नेक्स्ट FYI में मुझे वो प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। उसके लिए मैं ट्रेंड एनालिसिस या बिजनेस के लिए करूँगी।
Forecasting refers to looking forward and predetermining future trends and events along with their impact on the business organization. Business organization पे क्या impact होने वाला है, उसका trend क्या है, events का, वो हम forecast करते हैं और वो भी बहुत important होता है. हमारे पास जो past और क्या नाम है पुराना जो डेटा होता है, उस डेटा को हम यूज़ करके हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है और उस डेटा से ही हमें रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम करने का भी मौका मिल जाता है. It is performed by the managers working at various levels. However, sometimes experts like analysts, economists and statisticians are employed by the firm for making forecast. Forecasting is a little bit of a scientific technique. तो इसके लिए हमें कुछ बिजनेस एनालिस्ट हो गए या पर्टिकुलर जो उसी फील्ड से महारत हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, इन्फ्लेशन की दर बढ़ रही है या डिफ्लेशन हो रहा है, मार्केट में रेट क्या है, ग्रोथ क्या है, उस हिसाब से हमें क्या, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से हम अपना बजट बनाएंगे. तो उसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट की बहुत ज़रूरत होगी, स्टैटिस्टिशियन की भी बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि डेटा की एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिशियंस ही होगा. एंड ये लोग एम्प्लॉयड किए जाते हैं कंपनी में जो कि फोरकास्ट करते हैं बिजनेस के लिए. देयर आर टू मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग जो कि हम देख लेते हैं अभी. दीज आर मेथड्स विच आई एम डिस्कसिंग. इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी डिस्कसिंग इन अ ब्रीफ, इन अ डिटेल फॉर्म. अभी आई एम डिस्कसिंग इन अ ब्रीफ वे what are these method. First of all, quantitative forecasting method which is time series analysis. हमने स्टार्ट्स में बहुत ही पढ़ा है टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें कि हमें सेल्स, ग्रोथ रेट, इस तरह के जो डेटा होते हैं पाई चार्ट, बार चार्ट के थ्रू हम टाइम सीरीज एनालिसिस में देखते हैं. एक्स्ट्रापोलेशन इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच हेल्प्स टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द कंपनी और द बिजनेस. Econometric analysis, this is also a method used in the economics, which is a combination of mathematics and economics to chalk out the business. Regression analysis, this is also a statistical method to know about the trends or forecasting of the business. कुछ qualitative forecasting model की भी अगर हम बात कर लें, डेल्फी मेथड है, कंज्यूमर सर्विस है, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बिज़नेस के लिए. डेल्फी मेथड में कुछ अलग अलग तरह के लोग होंगे जो कि अपना एक मेथड या ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके पास मेथड आएगा और वो उसको बताएंगे. कंज्यूमर सर्विस है, उनके नीड, प्रेफरेंसेस, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को पता करेंगे, उससे हमें पता चलेगा. एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में भी हम लोगों के ओपिनियन को जानते हैं और उसमें हमारी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है जो कि कंपनी को जाती है. तो ये जो फोरकास्टिंग मेथड्स हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में. प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग कंपनी कैन गो वेयर एवर दे वांटेड टू, बट दैट दे वांटेड टू गो, जहाँ भी उन्हें जाना है वो हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए. और एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू आप जितनी भी कंपनीज़ को आज देख रहे हैं मार्केट में जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग करी थी. थैंक यू.